Hello students, in the previous lecture we had discussed a bit about integers. What are integers? Two types of integers. One is positive one that comes to the right side of the 0, and one is the negative integers that lies to the left side of the 0. And we have represented the integers by calculating the sums on the number line. Now moving forward in this lecture, that is lecture number 2, we will learn about comparison of integers. Now what do you mean by comparison? Comparison यानी दो चीज को आप एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो. इसके पहले भी मैंने बताया था कि अगर दो स्टूडेंट्स इस क्लास में है, राइट, एक की हाइट बड़ी दूसरे की हाइट छोटी, तो किसकी हाइट बड़ी हुई किसकी छोटी ये देखना पड़ेगा. जिसकी हाइट बड़ी है तो उसकी तरफ हम बड़ा इशारा करेंगे, दैट शी इज टॉलर और ही इज टॉलर. और जिसकी हाइट छोटी है उसकी तरफ हम क्या कहेंगे, दैट ही इज शॉर्टर और शी इज शॉर्टर. सो इसी तरह आज हम कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स इन अवर लेक्चर 2 वी आर गोइंग टू गो थ्रू द कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स. ओके, सो वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें कुछ साइंस होती है जो हमारे माइंड में याद रखनी है. वी हैव टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग साइंस. तीन साइंस है, 1, 2 एंड 3. So the first sign is of greater sign. Okay, greater की साइन हम बात कर रहे हैं. बड़ी साइन, जो इंटीजर बड़ा है तो उसकी तरफ हम आपको मुंह अपना मतलब एरो है वो आपको खोलना है, लाइक दिस. यू कैन सी ओवर हियर लाइक दिस. अगर इंटीजर उस तरफ बड़ा है मतलब उस तरफ हमें मुंह खोलना है, दैट इज लाइक दिस. या तो ऐसे करना है या फिर आपको ऐसे करना है. सो दिस इज द सेकेंड साइन. और थर्ड साइन होती है इक्वल की, मतलब दोनों इंटीजर्स की वैल्यू सेम रहेगी. ओके, अब उसके हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, 0 एंड 1. ओके, 0 एंड 1. सो इसमें बड़ा इंटीजर कौन होगा, 0 या 1? Obviously 1 is greater than 0. So we have to put the sign like this. Okay, so the next question is -8 और 10. अब देखो ये इधर -8 है और इधर ये 10 है. अगर पॉजिटिव नंबर दिया है और एक नेगेटिव नंबर दिया है, लाइक दिस, वन इज अ नेगेटिव नंबर एंड अनदर वन इज अ पॉजिटिव नंबर. सो हमें क्या करना है, जो नंबर पॉजिटिव है उस तरफ हमें ग्रेटर की साइन करनी है. नो नीड टू लुक एट द नंबर्स. इफ वन इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव देन पुट योर साइन टू द पॉजिटिव नंबर, मीन्स ओपन द एरो टुवर्ड्स द पॉजिटिव नंबर. नाउ -55 and -68 now comes two negative integers, -55 -68. अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि -68 बड़ा है. नहीं, आपको एक चीज याद रखनी है, जो नंबर 0 से सबसे नजदीक होगा, नेगेटिव के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर इधर हम बात करें -55 और -68 की, तो 0 से नजदीक कौन हुआ, -55. For negative integers the number which is nearer to 0 is greater number. So here -55 is nearer, so -55 is your answer. The third number 25 and 78 both are positive, so there is no doubt for positive the number which is greater is always going to be the bigger one. Last, -9 and 9. See, one is negative, one is positive. I have said you have to put the sign towards positive. Both the numbers are same, but the sign here is negative and here is positive. So this was about the comparison of integers. You have to keep this in mind, the greater sign, both the signs, greater, lesser, and the equal sign. Equal sign also can be used when, if a number I am writing over here as 5 and again you have got 5, so here is also a positive 5, here is also a positive 5, so it can be like this. Same for negative, here is -20 and here comes -20. So both the side -20 and -20, so both the integers are equal, so we can put the sign of equal over here. So this was about comparison of integers. Hello students, as we have gone through the comparison of integers,
our next topic is opposites. Now you will be thinking that maths में opposite का क्या काम? But see, here it is a shorter question, not a longer topic. So it is a just 1 mark questions, that is chapter number 4, 4.1. So whatever today we are going through, it will be a content of exercise number 4.1 only, and on the basis of that I will be giving you the homework. Okay, so here comes our opposite of the following. अब opposites यानी क्या? अप का ऑपोजिट क्या होता है? डाउन, और डाउन का ऑपोजिट होता है अप. उसी तरह राइट का ऑपोजिट लेफ्ट, और लेफ्ट का ऑपोजिट राइट, एंड टॉप का ऑपोजिट क्या होता है? बॉटम, और बॉटम का ऑपोजिट टॉप. तो उसी तरह यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, जिस इट इज इन अ स्टेटमेंट फॉर्म. यू हैव टू डू, आपको उसमें से एक वर्ड ढूंढना पड़ेगा कि जिसका हम ऑपोजिट कर सकते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल है 5 किलोमीटर टू साउथ. अब 5 का ऑपोजिट नॉट पॉसिबल, किलोमीटर का ऑल्सो नॉट पॉसिबल, टू साउथ, 2 का तो पॉसिबल है ही नहीं, और साउथ का पॉसिबल है लाइक. तो साउथ का ऑपोजिट क्या होता है? नॉर्थ. ओके, दैट्स गुड. सो फॉर साउथ वी कैन टेक नॉर्थ, राइट? सो 5 किलोमीटर्स टू नॉर्थ. सो दिस विल बी your answer, 5 kilometers to north. Moving to the next one, gaining 5 kg. यानी कोई लड़का या कोई लड़की उसका वेट गेन कर रहे हैं. कितना? 5 kg आप वेट बढ़ा रहे हो. हम जानते हैं कि कई मूवीज ऐसी होती है जिसमें आप अपना, मतलब हम नहीं, सुपरस्टार्स अपना वेट बढ़ाते हैं और कम करते हैं. तो गेन कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, उसको आपको कम करना है, राइट? तो लूज करना पड़ेगा. सो गेनिंग का ऑपोजिट क्या होगा? लूजिंग. सो इस वर्ड का ऑपोजिट होगा लूजिंग 5 kg, राइट? थर्ड वन, इंडिया वॉन द मैच. यस, बात करते हैं हम क्रिकेट मैच की. जब भी इंडिया जीतता है हम खुश हो जाते हैं, राइट? सो कभी कभी इंडिया मैच हारता भी है. मैच जीतना और मैच हारना, राइट? So India won the match is a question to us. So इस won का opposite होगा lost. तो आंसर क्या हो जाएगा? India lost the match. Okay. Fourth one, 20 kilometer. Not possible of this one. Above का possible है, below. Sea level का कुछ भी possible नहीं है. So इधर हम बात करते हैं above का opposite क्या होगा? Below. So 20 kilometer below सी लेवल, मतलब 20 किलोमीटर समुद्र से ऊपर और 20 किलोमीटर समुद्र से नीचे. फिफ्थ वन, सन इज वेरी हॉट. यस, वी आर वेरी वेल अवेयर दैट सन इज अ वेरी हॉट स्टार. ओके, सो अब सन का ऑपोजिट नॉट पॉसिबल, इज का भी नहीं होगा, वेरी का नॉट पॉसिबल, हॉट का यस. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ हॉट? कोल्ड, राइट? So I can write that sun is very cold. Sun एक, मतलब sun बहुत ही ठंडा है. These are just opposites, no need to worry. He or she is shorter. मतलब कोई लड़का या लड़की, shorter मतलब वो छोटी है हाइट में. ओके, सो अब he और she का opposite not possible, तो as it is रख दो. is का as it is रख दो. shorter का possible है. शॉर्टर का ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्टर यानी छोटा, तो उसका ऑपोजिट लंबा, लंबा यानी टॉलर. सो यहाँ पे आपका शॉर्टर और यहाँ पे आपका टॉलर. दिस आर डिग्रीज. ओके, सो वी हैव गॉन थ्रू द ऑपोजिट्स. हमने कौन सा ऑपोजिट इसमें चेंज किए, एक बार हम फिर से नजर डाल देते हैं. साउथ का हमने किया नॉर्थ, राइट? गेनिंग का हमने किया लूजिंग, फिर आता है वॉन का हमने किया लॉस्ट, फिर अबव का हमने किया बिलो, हॉट का किया कोल्ड, और शॉर्टर का किया टॉलर. सो दिस वाज अबाउट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. दिस आर इन योर एक्सरसाइज नंबर 4.1. Hello friends, hello students. We have learned the comparison. Okay,
Then after we have gone through the opposites of the following, now comes the module false. मतलब अब हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल की. अब मॉड्यूल यानी क्या? कोई भी इंटीजर आप ले रहे हो, राइट? सपोज मैं एक इंटीजर ले रहा हूँ, जैसे कि इंटीजर है 20, राइट? अब 20 है मेरा इंटीजर. अब उसके आसपास दोनों तरफ लाइन है, मतलब एक इंटीजर है जिसको मैं इस दो लाइन में लिख रहा हूँ. अब ये दोनों लाइन को हम क्या कहेंगे? वी विल से दिस लाइन एज अ मॉड्यूल. मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि कोई भी इंटीजर आप ले रहे हो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी अ नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो. सो व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी इंटीजर, मतलब क्वेश्चन में आपको कोई भी इंटीजर दो लाइन के बीच में दिया है, तब आपको याद आना चाहिए, याद रहना चाहिए कि वो मॉड्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो जब हम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूल के बीच में कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जब वो हम उसको आंसर में रिप्रेजेंट करेंगे तब द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड्यूल, मतलब इस मॉड्यूल का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. क्यों? राइट? मतलब ये मॉड्यूल है, दैट्स व्हाई द पॉजिटिव वैल्यू व्हेन द इंटीजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड्यूल इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब हमें समझना है इस चीज को. सो यहाँ पे मैंने 20 लिया है तो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? 20, राइट? अब नेगेटिव इंटीजर हो, सपोज यहाँ पे मैं -20 ले रहा हूँ. क्या ले रहा हूँ? -20. तो -20 का भी आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव 20, क्योंकि द स्टेटमेंट इटसेल्फ सेज दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड्यूल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव. मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी नंबर हो अंदर, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ हम इंटीजर्स ले रहे हैं. It can be a fraction, it can be any kind of number, rational numbers, irrationals, or the whole numbers, natural numbers, the negative numbers. It will always come as a positive number in outside. So मॉड्यूल की वैल्यू जो एब्सोल्यूट है वो पॉजिटिव आंसर रहेगा. अब हम उसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट है मॉड्यूल के अंदर 5, पॉजिटिव 5, उसका आंसर हमें मिला 5. क्या मिला उसका आंसर? 5. सेकेंड -5, इधर था +5, इधर है -5. सो दिस -5 मॉड्यूल के बाहर जब आप आंसर लिख रहे हो तो उसका आंसर पॉजिटिव रहेगा, तो -5 का हो जाएगा 5. ओके. थर्ड -9, अगेन द सेम प्रोसेस, -9 वुड बी 9, -9 का क्या हो जाएगा? 9. अब फोर्थ 9 पॉजिटिव है, बार भी पॉजिटिव आने वाला है, तो 9 का हो जाएगा 9, राइट? देन कम्स फिफ्थ 101, मतलब 101. It is a positive inside the module. The absolute value will also be positive. So the answer is 101, right? Then comes -101. पहले हमने 101 लिया, अब -101 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? Yes, the answer would be 101, माइनस की साइन निकल जाएगी और आंसर हो जाएगा पॉजिटिव. सो सेवंथ वन 20, मैंने आपको पॉजिटिव 20 लेके भी समझाया, नेगेटिव 20 भी हमने समझा. सो पॉजिटिव 20 है तो उसका आंसर एज इट इज रहेगा. मतलब मॉड्यूल के बाहर जब आप वैल्यू लिख रहे हो तो उसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, राइट? 8 - 35, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 35, राइट? -1 का हो जाएगा 1, फिर 10th -11, उसका आंसर हो जाएगा 11. फिर हम बात कर रहे हैं 55, सो 55 एंड लास्ट 0. अब 0 तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, इट इज अ न्यूट्रल नंबर, पर 0 इज अ नंबर, सो एब्सोल्यूट value of 0 will also be a positive one only. We know that 0 is not a negative, neither a positive, it is a neutral number. So this was about the module session. You have to keep in mind the absolute value of module is always positive, right? So
we learned today, what we learned in this class, lecture number 2, we learned about the comparison. मतलब दो इंटीजर्स आपको दिए, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, उसका कंपैरिजन हमने लर्न किया. देन आफ्टर वी हैव लर्न द ऑपोजिट्स, अप डाउन, नॉर्थ साउथ, above below. So we have learned different types of the opposites, and then after the last part, that is the absolute value of a module is always positive. मतलब मॉड्यूल का सिंबल है, उसके अंदर कोई भी इंटीजर, इस चैप्टर में हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, सो इंटीजर्स कोई भी लिया हो तो इंटीजर्स का वन इन द सेम, -20 का 20, नेगेटिव नंबर है तो उसका भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा. सो दिस वाज अबाउट द मॉड्यूल्स. I hope you are clear with today's content. So in homework also I am going to give you that things only. First I will be giving you the comparisons, then after a bit of the opposites not signs, and then after I will be giving you these examples. So I hope you are very clear with this. Thank you, students.